طارق بھائی ہیں؟ وہ سن رہے ہیں، آپ کریں بات. نہیں پہلے پتہ لگ جائے کہ سن بھی رہے ہیں کہ گل ساری ہو کے تو پھر بعد چ پتہ لگے. چوہان صاحب حالت سکر میں چلے گئے ہیں. یہ گل ہی لگتا کہ بڑی ڈاڈی ہے. ہر بندہ سن دے نال ہی حالت سکر میں چلا جاتا ہے. نہیں، صبح کا ٹائم ہے، وہ بعض دفعہ نیچے چائے لینے بھی چلے جاتے ہیں کچن میں، کیونکہ یہ اوپر بیٹھے ہوتے ہیں اپنے آفس میں نا، جو انہوں نے اچھا تبلیغ کا کمرہ بنایا ہوا ہے. اچھا. تو نیچے ان کی وائف ہوتی ہیں، تو پھر یہ نیچے چلے جاتے ہیں چائے وغیرہ بنانے کے سوری لیے. یار، وہ میرا فون آ گیا تھا، وہ ضروری تھا. میں نے آپ آپ بتائیں بتائیں. طارق چوہان صاحب، آپ نے چائے پی لی؟ نہیں چائے تو نہیں ابھی پی. اچھا، ابھی آپ نے جانا ہے چائے آپ نے پی. میری بات کدھر تک سنی ہے طارق صاحب؟ نہیں یار، میرے آپ کی نہیں سنی، پلیز دوبارہ کریں. وہ ایک دم آپ نے شروع کیا نا تو میرا فون آ گیا، وہ اٹینڈ کرنا ضروری تھا کیونکہ وہ اچھا کسی نے آنا تھا. چلو میں ایک نے بار کہا نا بڑا شیئر کر دیو اپنا ولید بھائی، جتنے میں تو واقعہ دوبارہ احمد بھائی دی ہوا ہے. میں کرنا. جی اچھا میں نا اپنا سیفی دی براڈ تے گیا نا. اچھا. تو سیفی مینوں آکھدا ہے کہ یار ولید بھائی مجھے کافی دیر ہو گئی ہے، تو آپ نا خرم سے بات کریں. ہوں میں نے کہا جی خرم صاحب بات تو نہیں کر سکیں گے، لیکن چلیں آپ پھر بھی کہتے ہیں تو بات کر لیتا ہوں. یہ جو کہتے نہیں نہیں. خرم شداد ہاں خرم صاحب مائی گاڈ. کہتے جی آپ اس سے بات کریں. میں کہا چلیں جی آ جاتے ہیں، اس سے بات کر لیتے ہیں. تو میں نے اس سے تھوڑی سی بات شروع کی. میں نے کہا جناب ایک بات ہے جی، ایک سوال ہے. کہتے جی پوچھیں. میں نے کہا جی اکبر، یہ کیا نام ہے، اسم احمد میں اول مصداق کون ہے اور کوئی اور بھی اس کا مصداق ہے؟ تو کہتے ہیں اس کے جی اول اور اصل مصداق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ذاتی طور پر اس کے مصداق مرزا صاحب ہے کیونککہ ان کا نام بھی احمد ہے. میں نے کہا جی بالکل. میں نے کہا جی ٹھیک ہو گیا. میں نے کہا اچھا مجھے ایک بات بتائیں. کہتے ہاں جی. میں نے کہا اگر اسے اس طرح کہا جائے تو یہ ٹھیک ہوگا کہ اس کے اول مصداق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ذل کی حیثیت سے مرزا صاحب اس کے مصداق ہیں؟ کہتے ہیں ہاں جی یہ بالکل ایسے ہی کہا جائے گا. میں نے کہا جی ویری گڈ ہو گیا. میں نے کہا جی اب مسئلہ بن گیا ایک بہت بڑا. کہتے وہ بتائیں. میں کہا انہوں حل کر دیو. کہتے جی بتائیں. میں نے کہا یہ مسئلہ تو یہ ہے کہ یہی ایگزیکٹ بات تو مولوی محمد علی لاہوری بھی مانتا ہے، اور حوالے کے طور پر آپ کی اخبار میں یہ بات لکھی ہوئی ہے آپ کے خلیفہ نے، سیکنڈ خلیفہ نے. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جب دونوں کی باتیں سیم ہیں تو تنازع کیا تھا؟ تنازع حل کر دیں. کہتا ہے مجھے آپ کی بات نہیں سمجھ میں آئی. میں کہا میں پھر سمجھاتا ہوں. میں سمجھاتا ہوں. میں نے کہا جی آپ نے کہا اول مصداق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ذلی طور پر مرزا صاحب اس کے مصداق ہیں. میں نے کہا یہ ایگزیکٹ بات تو مولوی محمد علی لاہوری بھی مانتا ہے. تو میں کہا پھر مرزا بشیر الدین صاحب سے اس کا مسئلہ کیا تھا؟ آپ اس کی بات سنیں. مجھے پتا کیا کہتا ہے؟ مجھے کہتا ہے یہ اتنی تحقیق کی آپ کو ضرورت کیا ہے؟ ہائے 100 گلاں دی ایک گل انہیں کر دیتی. میں نے کہا بغیر تحقیق کے عقیدے چینج ہوتے ہیں یا کوئی تحقیق کرنے کے ساتھ عقیدوں کو چینج ہونا حق ہوتا ہے، یا بغیر تحقیق تو ہی بندہ کہہ دیتا ہے کہ میں قادیانی یا احمدی ہو گیا، میں نے حضرت عیسیٰ کی وفات مانی اور میں احمدی ہو گیا، لبیک. کیونکہ حضور نے پٹرول کے بغیر گاڑی چلا دی. میں کہا ایسے ہوتا ہے میرے بھائی. میں نے کہا جی وہ اصل بات بتائیں جو اصل بات ہے، یہ باتیں نہ بتائیں. مجھے کہتا ہے کہ میں نے کہا وہ جو مرزا محمود صاحب نے یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے اول مصداق مرزا صاحب ہیں، تو کیا یہ بات انہوں نے غلط لکھی ہے؟ اس نے اول تو لکھا نہیں، وہ کہتے اس کے مصداق وہی ہیں، کوئی اور ہی نہیں ہے. 2-3 باتیں لکھی ہوئی ہیں نا. میں تو ایک کو پکڑ لیا. وہ تو مجھے پتا ہے. وہ کہتا ہے جی اس کے تو صرف ایک ہی مصداق ہے اور وہ مرزا صاحب ہیں. بالکل وہ بھی مجھے پتا ہے، لیکن میں نے کہا چلو اول ہی کر لو. ہاتھ والا رکھو. اب اس ٹائم جو حوالہ میرے پاس فوراً پڑا تھا، موجود تھا دینے کے لیے، وہ اول تھا.
मैंने कहा ये मांगेगा मैं लगा दूंगा। हाँ तो मैंने कहा यार ये इतनी बात मुनासिब है करना कि अगर कोई ये कह दे जो मिर्जा महमूद साहब ने कहा है कि इसके अव्वल मिस्दाक मिर्जा साहब हैं, तो कहता जी अगर मैं इसका जवाब दे दूं तो फिर क्या होगा? हाँ मैंने कहा जी फिर ये होगा कि आपका जवाब सुन के मैं खुश हूंगा और कहूंगा कि आपने सच बोला है, अपना अकीदा छुपाया नहीं, और मैं नीचे चला जाऊंगा। कहता जी आपने ठीक कहा, ऐसे ही है। अब मैंने रिकॉर्डिंग संभाल के रखी हुई है, आमिर भाई के लिए भेजूंगा इन्हें। हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बस इतनी सी बात हुई, उस खत्म हो गई फिर बात? नहीं फिर 20 मिनट मेरे साथ लगा रहा है वो। हाँ फिर उनका इमरजेंसी एक बटन है ना, वो इमरजेंसी बटन उसने फिर प्रेस किया। ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा साबित कर दो। इमरजेंसी बटन उन्होंने प्रेस किया फौरन, लेकिन ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, 20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗਾ। ਜਿਸਾ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੁੱਕਦੇ ਆਮਰ ਭਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ 2-3 ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਮਾਰਿਆ, ਸਵੇਰੇ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਘਰ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਘਰ ਗੱਲ। ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ ਨਾ ਮੈਸੇਜ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਐਸੇ ਅੱਧਾ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਚਲ ਭਾਈ ਆਨਲਾਈਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਫੋਨ ਖੜਕਾਵਾਂ। ਅੱਧਾ ਮੈਸੇਜ ਅਲੀ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇਧਰ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਭਾਈ। ਅਲੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਅਲੀ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਰਿਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਖੁਰਮ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਬੈਠਾ ਸੀ, 2 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸੈਫੀ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਪੀਣ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ। ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ 20 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 20 ਮਿੰਟ ਚ ਪਤਾ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਬੰਦੇ ਅਹਿਮਦੀ ਜਮਾਤ ਤੇ ਚੜੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵਲੀਦ ਨੂੰ ਡੱਕੀਏ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਲਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਬੜੀ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਖੁਰਮ ਨੇ। ਹਾਂ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਖੁਰਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੌਲਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਲਾਹੌਰੀ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਸ਼ੀਰੁੱਦੀਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅਵਲ ਮਿਸਦਾਕ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿਸਦਾਕ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। मैं कहा जी फिर प्रॉब्लम की सी, प्रॉब्लम समझाओ। कहते इतनी तहकीक करने की जरूरत क्या है, आपने कौन सा मान लेना है? मैंने कहा बगैर तहकीक तो मन लवा ते वो ठीक है, अखा ते पट्टी बन ला। नहीं ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਭੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਦੇ ਦੇਣਾ ਘੋਟ ਕੇ, ਸਰਦਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਭੰਗ ਪੀ ਕੇ ਸਾਈਆਂ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੇ ਪੀਤੀ, ਉਹੀ ਵਾਲਾ ਦੇ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ। ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ 20 ਮਿੰਟ ਉੱਥੇ ਬਰਾੜ ਤੇ ਕੱਢ ਲੈਣੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 2-4 ਮਿੰਟ ਚ ਵਾਪਸ ਆਓ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਬਰਾੜ ਸੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਾਤੀ ਆਡੀਓ ਤੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਭਾਈ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਸ਼ਾਇਦ। ਇਹ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਸੈਫੀ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਆਜ਼ਮ ਸੈਫੀ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ। ਉਵੇਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਨਾਮ, ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗਿਆ ਸੀ ਆਜ਼ਮ ਸੈਫੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਆਜ਼ਮ ਸੈਫੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਵਾਹਵਾ ਦੇਰ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਉੱਥੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਗਾਲਾਂ ਕਢਾ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਗੰਦੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਹਦੀ ਗੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਉਹਦਾ, ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਉਤਰਿਆ ਵਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਪਾ ਕੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ मैं गया वहां तो आजम सैफी ने कहा कि मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, आप खुरम शहजाद से बात करें। बस फिर वो 20 मिनट की मैं रिकॉर्डिंग रखी है, वो सुन ले जाए। तो आखते पे सन कि जी जो मिर्जा महमूद साहब ने लिखा है वही बात ठीक है। मैं कहा जी फिर खुल के बोलिया करो ना। नहीं जो कोई लिखे है मिर्जा महमूद ने, उन्होंने अपनी जुबान में बयान करो, लोगों को दसो भी है मिर्जा महमूद ने लिखे थे, ऐसे मनने। जे ਅੱਜ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇ ਝਗੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਦੀਨ, ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਨਵੀਂ ਸਾਇੰਸ ਲੈ ਕੇ, ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ,
ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿਓ। ਜਦ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਤੌਫੀਕ ਦੇਗਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੌਕਫ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਇਹ ਆਮਿਰ ਗੱਲ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸੌਰੀ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਕਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਕਾਂ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਵੇ, ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਵੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਿੱਲਣ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੇਬਸ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਊਲ ਫਾਊਲ ਟਾਕਿੰਗ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਰਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਖਤਲਾਫ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ, ਲੋਕੀ ਸੁਣਨਗੇ, ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਣਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਬਰਤ ਪਕੜਨਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਮਸਲਾ ਇਹਨਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੋਕੀ ਗੌਰ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਕਰੋਗੇ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ 3-4 ਅਹਿਮਦੀ ਚੜੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਖੁਰਮ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ साहब उन्होंने आख रहे सन कि ये जो वली साहब जब आए थे ना, इन्होंने आके इतने प्यार से बात कर रहे थे तो मुझे डर लगने लग गया कि ये पता नहीं आज क्या करेंगे। कहता हमें प्यार से डर लगता है, हमें गुस्से से डर नहीं लगता, थप्पड़ से नहीं लगता। सही पर डायलॉग बुझ लिया कि कोई तूफान दा पेश करना है। अच्छा असल गल आमिर भाई ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆ। ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਖ ਰਹੇ ਸਨ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ ਗੱਲ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਮਤਿਆਜ਼ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਇਸ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਉਹ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਕੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਸ਼ੀਰੁद्दीन महमूद ਦੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਮੀ ਤਹਿਕੀਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਲਮੀ ਤਹਿਕੀਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੀ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਨੀਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਆਮਿਰ ਭਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਹਿਕੀਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੁਖਤੀ ਹੈ। ਮੁਖਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਲਤੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਖਤਾ ਤੇ ਖਤਾ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਸ਼ੀਰੁद्दीन महमूद ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਸ਼ੀਰੁद्दीन महमूद ਸਾਹਿਬ ਗਲਤੀ ਤੇ ਸਨ, ਗਲਤੀ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗਲਤੀ ਤੇ ਆ। ਦੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਛੱਡੇ ਨਾ, 2 ਹੀ ਰਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਹੁਣ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਸ਼ੀਰੁद्दीन महमूद ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਮੌਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਲਮੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਵਰਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਅਕੀਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਲਹਾਮ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਲਹਾਮ ਹੋਇਆ, ख्वाब ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ख्वाब ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਉਹ ख्वाब ਜਾਂ ਇਲਹਾਮ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਜਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਸ਼ੀਰੁद्दीन महमूद ਅਹਿਮਦ ਦੀਆਂ ਦੀਗਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਨੇ ਉਹ ਹੁਜਤ ਨੇ। ਬਸ਼ੀਰੁद्दीन महमूद ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਅਗਰ ਇਸ ਤਹਿਕੀਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਝੁਟਲਾਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੀ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥੀ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਫਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਹਲਫਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਬਤਦਾਈ ਅਯਾਮ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਅਯਾਮ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਨ 2000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸੀ, ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਿਹਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਿਹਾਈ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਬਿਹਾਈਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁੰਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸੁੰਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸੁੰਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਫਜ਼ੀਲਤ ਅਲੀ ਦਾ ਕਾਇਲ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅਕਲ ਮੌਤ ਖਾਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, 29 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਸੁੰਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਜ਼ੀਲਤ ਅਲੀ ਦਾ ਕਾਇਲ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ?
ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਗੇਮ ਪਾਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਸੀਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਐ ਤੇ ਮੈਂ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਵੱਲ ਜਮਾਤ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਜ਼ੀਲਤ ਅਲੀ ਦਾ ਕਾਇਲ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ 2 ਭਰਾ ਸ਼ੀਆ ਸਨ ਨਾ, 2 ਭਰਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਵੱਲ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਫਜ਼ੀਲਤ ਅਲੀ ਦਾ ਕਾਇਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬਈ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਦੀਗਰ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੌਕੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਜ਼ਲ ਸਨ ਦੀਗਰ ਖੁਲਫਾਏ ਸਲਾਸਾ ਵਗੈਰਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼ੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਖਲੀਫਾ ਤੋਂ ਬਿਲਾ ਫਸਲ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਦੀਗਰ ਸਾਹਬਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਜ਼ਲ ਨੇ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਜ਼ੀਲਤ din ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਲੀਫਾ ਬਿਲਾ ਫਸਲ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਨੁਕਤਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਤਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੋੜਿਆ, ਕੀ ਗਲਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਅਸਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਇਸਲਾਮ ਵਾਦ ਦਾ ਤਾਰਫ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਗੋਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਸਮਝਦਾ, ਬਸ਼ੀਰੁਦੀਨ ਮਹਿਮੂਦ ਅਹਿਮਦ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕੀ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ, ਦਾਅਵਤ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਐਸਾ ਖਾਮ ਮਾਲ ਛੋੜ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੂਜੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਸਾ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਐਸਾ ਡਾਟਾ, ਐਸੀਆਂ ਤਹਿਰੀਰਾਂ, ਐਸੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਦੂਜੀ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਰਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੀ ਔਰ ਤਦਵੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ बशीरुद्दीन महमूद अहमद, इन्हों मजहब की शक्ल देने वाला बशीरुद्दीन महमूद अहमद। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम भाईजान, एक बात करना चाहता हूँ। भाई थोड़ी देर ठहरे जरा, वो बात कर रहे हो, सुने चुप करके। मेरा जॉब है, तो अगर 2 मिनट दे दो तो मेहरबानी। यहाँ में नजीर भाई, ठीक है, कर लें बात, कोई बात कर लें। अच्छा यार, आप लोग रोज एक ही बात करता है यार, आप लोग थकता नहीं है? ये बात करने के लिए हमें रोका है? नहीं रोका नहीं है यार, हम सिर्फ आपको अपना ओपिनियन दे रहे हैं। रोज एक ही बात, रोज एक ही बात। मर्ज़ई कादियानी, मर्ज़ई कादियानी, मट्टी पाओ यार, उन्होंने मर जाएंगे आप ही अपनी मौत छो तो साथ। ये ओपिनियन नहीं है, ये बकवास है आपकी, और दफा हो जाए नीचे जाके अपने दिमाग का इलाज करवाएं, किसी डॉक्टर को चेक करवाएं। अगर ये बातें आपको, अगर इसे नहीं पसंद तो इधर तुम लेने क्या आए हो, फिर तुम कहीं और जाओ। अंब लेने आए हो। बदतमीज और बद तहजीब लोग हैं। बड़ी जरूरी गल करनी, फिर मेरी जाब शुरू हो जानी। मैं क्या कोई सवाल पूछना है? अच्छा, वो कहन लगा मैनू, वो बंदा कहन लगा जिस बंदे दी 6000 किताब ओदी लाइब्रेरी विच सी ते मैं भी ओदे विचों किताबां लैके पढ़दा सी, ते वो बंदा अच्छा मुताले वाला बंदा सी और बड़ा ओदा नॉलेज सी, और वो 6000 बुक उन्हें पढ़ी सी मोटी मोटी। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਦਿਨ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇੱਕ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਖੋਲੋ, ਅਗਰ ਬਸ਼ੀਰੁੱਦੀਨ ਮਹਿਮੂਦ ਅਹਿਮਦ ਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਰਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਰਤੀਬ ਹੈ, ਤਦਵੀਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪੱਧਰਿਆਂ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਹਾਂ कि जे बशीरुद्दीन महमूद अहमद की तहकीक विचों कढ़ ली जाए ना, पिछे कख रह ही नहीं जाता, दीन ही खत्म हो जाता, इन्हां दा मजहब ही सारा खत्म हो जाता। नहीं, मिर्जा महमूद ने सीधा पदरिया नहीं कीता, बल्कि सारा कुछ उल्टा कर देता। उल्टा कर देता है, उल्टा कीते बगैर तो बनता ही नहीं सी ना। नहीं मिर्जा साहब ने जो दावा सी मुजद्दद होंदा, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਾ ਹੇਰ ਫੇਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਟਮਣੇ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਟਮਣੇ ਤੇ ਚੜ ਸਕਣ। ਲੇਕਿਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਕਰ ਲਓ। ਆਮਿਰ ਭਾਈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਸ਼ੀਰੁੱਦੀਨ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਇਜਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਜਾਦ ਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੈਟਿੰਗ ਮੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਸਮਝਾਓ। ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਾਅਵਾਜਾਤ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਰਤੀਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵਾਜਾਤ ਨੇ, ਅਗਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਹਿਰੀਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਮਝਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਲਓ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਕਿਆ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹੀ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਲਾਹੌਰੀ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ, ਕਾਦੀਆਨੀ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ, ਦੋਏ ਵੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖੀਆਂ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਈ ਕਿਸੇ ਰਾਵੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਇੰਝ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਭਾਈਜਾਨ। ਸੌਰੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ नहीं आंदियां, सिर्फ नबूवत के दावे वास्ते। तो नबी पाक पर ख़त्म हो गया ना। इस उम्मत के लिए मुहद्दिसों को रखा गया है। नबी कोई नहीं आ सकता, ठीक है, लेकिन मुहद्दिस भी एक माने में नबी ही होता है। मेरा दावा मुहद्दिसियत का है। अगर नबी के लफ्ज़ से तकलीफ़ होती है, आपको गुस्सा आता है, भाइयों में इर्तियाश पैदा होता है, तो आप ऐसा कर लें कि इसको लफ्ज़ को नबी को काटा हुआ ख्याल कर लें, तो दूसरा कर लो, सिर्फ मुहद्दिस कर लो, लफ्ज़ नबी की जगह। नाल ही अगे चंद साल बाद लिखा है, भाई बात यह है, जाहिल मुखालिफ मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हैं मैंने नबूवत का दावा किया, इस तौर से मैं नबी हूँ, उस तौर से मैं नहीं हूँ। हम दसो की करोगे दा? इस तरह ਦੀਆਂ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਜਾਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੇਡ ਕਰ ਲਾਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੁਜੱਦਦ ਸੀ। ਉਹ ਮੁਜੱਦਦ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ 'ਚ ਨਬੀ ਔਰ ਰਸੂਲ ਸੀ। ਇਹ ਫਰਕ हो गया ना। हाँ, मुजद्दद की हैसियत विच मुजद्दद की हैसियत में नबी और रसूल थे। मुजद्दद की हैसियत विच नबी तो रसूल हुंदा ही नहीं भाई। ये उन्होंने इस्तिलाह ये पेश की है ना, उन्होंने बताया भी किस वजह से। तो रसूल उन्होंने बताया भी किस वजह से। तो रसूल अल्लाह की तरफ से भेजा गया, नबी खुदा ताला की तरफ से वही पाकर मामूर होने वाला। अच्छा एक मिनट, सिर्फ एक मैनू गल समझ लैण दिओ, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट गल इत्थे समझण लगा वां। आमिर भाई मैनू सिर्फ एक गल ये दसो कि ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਲਾਹੌਰੀ ਵੀ ਨਬੂਵਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡਿਨਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਖਿਲਾਫਤ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਈਵਨ ਕਿ ਕੱਲ ਹੁਸੈਨੀ ਦੀ ਬਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਐਮਜ਼ੀ ਤੇ ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਤੇ ਤਾਹਿਰ ਅਮਜਦ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕੇ ਤਾਹਿਰ ਅਮਜਦ ਨੂੰ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਖਿਲਾਫਤ ਵਾਲੇ ਨੇ। नहीं बना सकता बंदा ऐसियां कंट्राडिक्टरी ऐसियां। अच्छा सिर्फ एक आखिरी गल, सिर्फ एक रिसर्चर बाजी आई आ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਬਸ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਹਿਰੀਰਾਂ 'ਚ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਜੱਦਦੀਅਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਹੱਦਸੀਅਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸਤਰਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ ਖਲਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵਾ? नहीं, मुजद्दद और मुहद्दस होने दे दावे दी ते अहमियत ही कोई नहीं हुंदी। अगर उन्होंने दावा खुल के कीता होवे तां या गोलमोल कीता होवे। उन्होंने खुल के कहा है 14वीं सदी के मुजद्दद को मसीह मौद कहा गया है, तो उन्होंने खुल के बताया है, लिखा हुआ है। आप भी ठहर के फिर ਆਪਾਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਠਹਿਰ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੀਚੇ ਬਾਜੀ ਆਇਆ, ਬਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੁੱਛ ਲਓ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਜੀ ਨੂੰ। अस्सलाम वालेकुम बाजी। अस्सलाम वालेकुम भाई बशीर। वालेकुम अस्सलाम बाजी, कर लें बात आप। बाजी भाई बशीर होता है। अच्छा वो मुझे हंसी इस बात पे आ गई थी, वो भाई एक नीचे आए थे रबदा कुछ ना, उन्होंने काम पे जाना था, तो उन्होंने कहा बंदा थकता नहीं है। मैंने कहा मुझसे आके पूछिए, मैं बताऊंगी। बिल्कुल थक जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है पढ़ के ना, बिल्कुल। मैं सुन के आई थी, शायद वलीद भाई कह रहे थे कि क्या था, हाँ जी, वो कह रहे थे कि खलीफा सानी ने जो अपना एक इल्मी गुफ्तगू पेश किया उसको मानना ज़रूरी नहीं है, तो उस पर आज बात करेंगे। तो
वली भाई हम सुकून से आपको अच्छे नहीं लगते, रहने दें आप उसको, उसकी वजह से मामला काफ़ी ठंडा हो गया है कि उसको मानना ज़रूरी नहीं है। नहीं बाजी, ये असल बात ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ मुझे इसलिए ये अच्छी बात नहीं लग रही कि ये बात उन्होंने इस रंग में नहीं की हुई जिस रंग में ये आजकल सिर्फ ठंडा करने के लिए या ऊपर कपड़ा डालने के लिए इसे कहा जा रहा है। बाकी बात आपकी ठीक है, लेकिन देखें उन्होंने जब ये लिखा है ना तो हम कि हमें अगर कोई सुकून बंदा मिल गया। देखिए हमारा दिल नहीं मानता एक बात मानने को, तो उसके बाद जो है हजूर ने खुद जब आज़ादी दे दी है तो हम उसमें खुश हैं, नहीं तो फिर दोबारा से वो पढ़ना पड़ेगा पूरा का पूरा, जबकि लेकिन एक बाजी सीधी बात उन्होंने है कि वो दिल नहीं मानता लेकिन इस मुँह आमद वाली ले, बात। लेकिन बाजी उन्होंने जब खुद एक चीज लिखी हुई है कि इस तहकीक को जो नहीं मानता हम उसको ये कह सकते हैं कि वो गलती पर है। हाँ, जमात से तो नहीं निकालेंगे, मतलब उसका इखराज जमात से नहीं करेंगे, ये बात मैं मानता हूँ कि उन्होंने ये बात लिखी हुई है, लेकिन ये बात कि उन्होंने साथ नहीं लिखी कि बाजी फॉर एग्जांपल आप नहीं मानती, आपने जैसे कहा कि आपका दिल नहीं मानता, इसका मतलब मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब की नजर में आप इस टाइम मुफ्ती हैं, और मुफ्ती का मतलब ये अभी मुझे थोड़ी देर पहले आमिर भाई ने बताया कि गलती पर है आप। तो कोई बात नहीं, गलती पे होना ज़्यादा मतलब उतना वो नहीं है, वो ये है कि कम से कम जमात में तो हैंगे ना, ऐसे सोचें। यानी आप गलती पे होकर जमात में सिर्फ रहना चाहती हैं, अल्लाह ताला के हुजूर आपने पेश होकर जो बात करनी उससे आपको कोई दिलचस्पी नहीं है। इमोशनल टॉर्चर कर रहे हैं इस वक्त। इमोशनल टॉर्चर नहीं आप नहीं मानती कि इंसान ने मरने के बाद अपने अमाल का जवाब देना है। मैं दुनिया में ही कह दूंगी कि मैं तारिक भाई की स्टूडेंट हूँ, तो डायरेक्ट हो जाए। भाई तारिक भाई तो खुद भी वहां पे खड़ा होगा कटहरे में, तो आप मेरी स्टूडेंट कह के बच तो नहीं सकती। नहीं, सही बात। बाजी अगर वो सिर्फ इतनी बात कर देते हैं ना जो आपके सेकंड खलीफा थे, जब मुझे ये बात पता लगी ना बाजी गलती वाली, तब मैं थोड़ा हैरान हुआ हूँ। अगर वो सिर्फ इतनी बात कर देते ना बाजी कि ये मेरी अपनी इल्मी तहकीक है, इससे कोई बंदा भी डिसएग्री कर सकता है, इतनी बात करके अगर वो रुक जाते ना तो बाजी बात में बहुत वजन होता, लेकिन वो इतनी बात करके रुके नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि जो ये नहीं मानेगा वो अपने आप को गलती पर होगा, वो गलती पर होगा, हम उसे मुफ्ती कहेंगे। फिर इसका मतलब कि या उनका अकीदा गलत है या जो उनके साथ डिसएग्री कर रहा है उनका अकीदा गलत है। तो जिसका जब अकीदा गलत हो गया है तो अब इसका मतलब कि फिर प्रॉब्लम है, तो इसका हल होना चाहिए, कोई ना कोई हल जब तक नहीं होगा। ये आमिर भाई बैठे हैं, आमिर भाई को बीच की ये आमिर भाई बैठे हैं। जरूरी है कि अगर हम नहीं मानते, मैं नहीं मानता। तारिक भाई आप रुकिएगा, आप थोड़ी देर जरा आमिर भाई को बात करने दीजिए। तो दूसरे जो है इल्मी गुफ्तगू में तो कुछ बीच की राह नहीं निकल सकती है। ये वलीद भाई ने तो बहुत फुल टाइम हमें जो है ना पिटवाने का। देखें ट्रूथ सर्चर साहबा, वो मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद साहब ने 10 सबूत 10 दलाइल पेश किए हैं और 5000 का इनाम रखा है, हर एक को चैलेंज किया है कि आके मेरे साथ इसके ऊपर बात कर लो कि मैं हक पर हूँ, और कुरान से उन्होंने दलाइल दी हैं, और मिर्ज़ा साहब की जो अपनी ज़िंदगी है उसमें से उन्होंने दलाइल दिए हैं उनके हालात के मुताबिक। तो 10 सबूत और 10 दलाइल देने के बाद आप कहें कि मानो या ना मानो खैर है, ये तो नहीं ना हो सकता। या तो वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। नहीं तारिक भाई मेरी बात सुने ना, रास्ता तो निकलता है ना फिर भी। नहीं देखें साहिबा, दीन जो होता है ना वो ब्लैक और वाइट होता है, ये बीच का रास्ता कोई नहीं होता, ग्रे एरिया नहीं इसमें होता, वो उसको मुनाफिकत कहा जाता है ग्रे एरिया को। अगर आप सच के साथ हैं या आप बातिल के साथ हैं, दरमियान का कोई रास्ता ही नहीं है दीन में। वैसे होता है लेकिन दीन में बाजी, मुझे इसमें बाजी एक अल्लाह के नबी की एक हदीस याद आ गई है, लेकिन मैं चाहूंगा कि पहले आमिर भाई थोड़ी सी गुफ्तगू करें क्योंकि उन्होंने माइक ओपन किया है, तो फिर हम थोड़ी सी ना आगे बात करेंगे इंशाल्लाह। जी आमिर भाई करें आप थोड़ी सी बात। अगर खाक सर को इजाज़त दें तो कोई खाक सर में डालना चाहता है खाक सर, और वो ये है कि आपको शायद ये नहीं पता कि ये मामला मुफ्ती और मुसीब का है नहीं। यानी जो बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब की बात को नहीं मानता वो मुफ्ती है, जो मानता है वो मुसीब है। मामला सिर्फ इतना सिंपल है नहीं, इससे भी ज़्यादा अहम बात ये है जो सबसे ज़्यादा अलार्मिंग है, वो हम 2-3 रोज़ से कर रहे हैं और उस पर लब्बैक सिर्फ 1-2 साथी मुखलस ही हैं जो कहते हैं, बाकी तो अपने आप को माशाल्लाह से आना कवा समझते हैं। वो ये है जो हम आपके सामने भी ट्रुथ सर्चर सिस्टर रखना चाहते हैं
कि ये इख्तलाफ जमात अहमदिया के दो ग्रोहों के दरमियान भी हुआ था कि इस्मो अहमद का मिस्ताक है कौन। व मुबश्शिरम बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, कुरान की आयत है। इसका मिस्ताक है कौन, इस पर इख्तलाफ जमात अहमदिया लाहौर और जमात अहमदिया कादियान के दरमियान भी हुआ था। अब इन दोनों का अलग अलग मौक़िफ़ था। आज हमारा ये कहना है कि जो मौक़िफ़ लाहौरी ग्रोह का था वो जमात कादियान ने अपनाया हुआ है। क्या ये बात गलत है जो मैं कर रहा हूँ? अगर गलत है तो मैं आपको हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप किसी बंदे से पूछ कर ला दें कि जब मौलवी मोहम्मद अली लाहौरी का और बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब की ये इस मौजू पर बहस चल रही थी, जिसमें वो 5,000 रुपया इनाम रख कर कह रहे थे कि जो बंदा साबित कर दे कि इस आयत के मिस्ताक नबी अलैहिस्सलाम हैं और उनका नाम अहमद है, उनको मैं 5,000 रुपये, उस ज़माने में 5,000 रुपये आज के 5 करोड़ के बराबर है। 1916 की बात है, 2025 में हम जा रहे हैं, 109 साल पहले की बात। आज का वो 5 करोड़ रुपया, वो कहते थे कि मैं उसको 5,000 रुपये इनाम दूंगा जो ये साबित कर दे। वो क्या मौक़िफ़ था? बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब का मौक़िफ़ क्या था और मौलवी मोहम्मद अली लाहौरी साहब का मौक़िफ़ क्या था? सिर्फ ये सवाल है। ये दो मौक़िफ़ रिकॉर्ड करके ला दें, लिख कर ला दें। जो बंदा ला देगा, मैंने अपने मुजाहिदों को कहा मैं उसको अजीम मुजाहिद ख़त्म नबूवत का अवार्ड दूंगा। वो नहीं ला सकते। आप पूछ कर बता दें किसी से कि ये मौक़िफ़ क्या था बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब का। जो बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब का मौक़िफ़ था उससे तो मुनर्रफ हुई बैठी है सारी जमात। कहते हैं कि ये मुफ्ती का मामला है, मुसीब का मामला है। ये मुफ्ती मुसीब का मामला नहीं है। आपने मुफ्ती बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब को करार दिया हुआ है और दे रहे हैं। आपकी मैं बात नहीं कर रहा, ट्रुथ सच्चे सिस्टर की नहीं बात कर रहा। बाकी जितने लोग यहाँ पर टिकटॉक पर मुझे मिले हैं वो सब बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब को इस मामले में मुफ्ती करार दे रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इस आयत के हकीकी मिस्दाक, अव्वल मिस्दाक नबी अलैहिस्सलाम हैं और ज़िल्ली तौर पर मिर्ज़ा साहब भी इसके मिस्दाक हैं। यही मौक़िफ़ मौलवी मोहम्मद अली लाहौरी का था। आमिर भाई जी, देखें, हम लोग जब कुरान पढ़ते हैं ना तो हम तफसीर सगीर जो सबसे ज़्यादा किताबें तो कभी नहीं खोल के देखी ना इतनी डिटेल में, वो तो ये टिकटॉक की वजह से खुली हैं। तो तफसीर सगीर में जो 3-4 लाइनें लिखी हुई हैं उसकी वजह से वो मतलब अगर आप उसको सिर्फ उसको देखें तो बचत तो हो जाती है। वहाँ पर उन्होंने तफसीर सगीर में मालूम नहीं है कि ये तफसीर सगीर क्योंकि बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब के अपने हाथ की लिखी हुई है इसलिए, वरना उन्होंने तो इसी आयत की तफसीर में सफ़ों के सफ़े काले किए हैं ना। की सारी तकरीर इस मौजू पर है। 1916 के जलसे की, सालाना जलसे की तकरीर इस मौजू, वो अल-फज़ल के 10-10 सफ़े की तकरीर है, वो क्यों नहीं ऐड की तफसीर में? ये सवाल। तो 1956 तक ऐसे समझ सकते हैं ना कि 1956 तक उनको जो है वो जब तफसीर सगीर लिखी गई है या 54 में मुनीर कमिश्नर, तो तब तक जो है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका था मामला। मिर्जा महमूद साहब ने अपने मौक़िफ़ से रजू कर लिया था, ये आपका कहना है? नहीं, तो थोड़ा हार्ड वर्ड हो जाएगा, इसको अच्छी तरह से अच्छा वर्ड यूज़ करके कहते हैं। मीठा सा लफ्ज़ कोई ढूंढ के इस्तेमाल। हाँ हाँ, मतलब अपने हल्का हो गया मौक़िफ़ था ना में कुछ मामला। अपने मौक़िफ़ में कुछ पैदा कर ली थी। हाँ, कुछ हल्का हो गया था मामला, क्योंकि हम लोगों ने तो वो अल-फज़ल अभी ये टिकटॉक पे आके पढ़े हैं। हमें तो तफसीर सगीर का ही पता था जिसमें 2-3 लाइनें थी। तो अगर कोई कहता है अहमदी आके आपको कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही पहला मिस्दाक मानते हैं, तो वो गलत नहीं कहता, क्योंकि जो एक हमारे हाथ में हैंडी होता है कि कुरान पढ़ते हुए हमने तफसीर सगीर पे नज़र डाली। तफसीर कबीर का में कुछ भी नहीं है इस आयत के बारे में डिटेल। इस्मुहु अहमद के ऊपर जो हमें मिलता है वो मिर्ज़ा साहब का मिलता है, उसके अंदर भी कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। एक हदीस दी हुई है अल इस्लाम पे, और खलीफा अव्वल का है, उसमें भी कुछ ऐसा नहीं मिलता। और फिर तफसीर सगीर की जो है 3 लाइनें हैं मुश्किल से। ये भी बात आपकी थोड़ी सी ना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि मिर्ज़ा साहब की ही तहरीर पेश करके अज़ाला हाम की और एजाजुल मसीह की मिर्ज़ा साहब का ही इक़्तिबास पेश करके
बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब ये साबित करते थे कि नबी अलैहिस्सलाम इसके मिस्दाक नहीं हो सकते, क्योंकि मिर्ज़ा साहब ने वहाँ पर रज़ाल्लाहु हाम में लिखा हुआ है कि नबी अलैहिस्सलाम अहमद भी हैं और मोहम्मद भी हैं, लेकिन ये पेशगोई जिसके बारे में है वो मुजर्रद अहमद है, वो सिर्फ अहमद है। मुजर्रद का मतलब होता है सिर्फ, यकता, वो सिर्फ अहमद है। और सिर्फ अहमद वो है जो हकीकत ईसवियत अपने अंदर रखता है और आखिरी ज़माने में आया है, वो है मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी। नबी अलैहिस्सलाम तो नहीं है ना जो आखिरी ज़माने में आए हों और हकीकत इसमें। तो साफ मिर्ज़ा साहब ने वहाँ पर अपने आप को इसका मिस्दाक करार दिया हुआ है। इसी तरह से जाजुल मसीह की इबारत है, अरबी में है, उसका तर्जमा आप पढ़ लें। तो मिर्ज़ा साहब की तहरीर और बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब की इन तहरीरों को अगर पीछे करके, साइड पे करके आप ये कहते हैं कि हम तफसीर सगीर की सिर्फ चंद लाइनें पढ़ के तो वहाँ से अपनी बचत का रास्ता दिखते, दिस इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमिर साहब, एक बात आपको सच्ची सच्ची बताऊं, जब मलिक साहब बात दो बंदों के दरमियान हो रही है तो जितना वैसे दो बंदों के अखलाकी तौर पर दरमियान दो बंदे दी हो रही होगी, जितना फन आपके पास सच को झूठ और झूठ को सच बनाने में है, मेरी जिंदगी में ऐसा कोई बंदा नहीं आया। अच्छा मेरी ठीक है, आपने जिंदगी क्यों मुझे में गाली देनी है दे लीजिएगा, सिस्टर की गाली बात नहीं देनी, गाली क्यों देनी है? आमिर भाई वो सिस्टर के पास टाइम कम होता है, तो ये मलिक साहब को टाइम हम बाद में दे लेंगे, उनकी क्लास है। तो मलिक साहब दूसरा या तो इंतजार कर लो या फिर अपना थोड़ी देर नीचे बैठ उनको जाओ। उठाते क्यों हैं? जब दो बंद बात कर रहे हैं तो ना भी उठाएं। हाँ जी, तो ये नज़ीर साहब भी हैं। नज़ीर साहब माइक खोला तो मैं नीचे भेज दूंगा आपको, तो अगर बैठे हैं तो फिर सुकून से हिम्मत करके और हौसला रख के बैठना है। जी आमिर भाई कंटिन्यू करें आप। हमारे मॉडरेटर जो है ना वो हमारे जाहिल मुखालिफ हैं। ਆਮਰ ਭਾਈ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਰਾੜ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਰਾੜ ਸੈਂਟਰ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਰਾੜ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ, ਇਹ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। चले कोई बात नहीं, कंटिन्यू करें आमिर भाई। बात यह है कि मिर्ज़ा साहब की ही तहरीर से ये इस्म अहमद का मिस्दाक मिर्ज़ा साहब साबित होते हैं। अगर ये सिर्फ मिर्ज़ा साहब के बेटे का दावा होता, बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब का, फिर ये अब आप जो कह रही हैं सिर्फ तफसीर सगीर की 4 लाइनें आप अपने लिए वो रख सकते थे, लेकिन ये तो मिर्ज़ा साहब खुद लिख कर गए हैं। आमिर भाई हमने मतलब ये जो 1915 के वो जो सारी आपस में इनकी डिबेट चल रही थी ना, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं पढ़ रही थी ये सब कुछ भी, लेकिन इतना मुझे क्लियरली जो है ना जो समझ नहीं आई थी। ये जो क्लियर समझ आई है ना, 1+1 2 वाला काम है ना, वो खलीफा सानी की तहरीरात से समझ आई है। और अगर उसको पढ़ने के बाद मैं पढ़ती हूँ मिर्ज़ा साहब की तहरीर तो मुझे समझ आती है अच्छा ये हो सकता है इसका। लेकिन जो अब तक मतलब पढ़ा था ना, वो सब नहीं पता था, तो मेरे दिमाग ने या फिर मुझे क्या, मैं कम अकल हूँ कि मैंने उसको प्रोसेस नहीं किया था इस तरीके से। वो थोड़ा सा इतना क्लियर नहीं था जितना खलीफा सानी ने क्लियर किया है। नहीं, अब ये नहीं मुझे पता कि आप कौन सी खलीफा सानी साहब की इबारत को देख कर कह रही हैं कि वहाँ से नुक्ता क्लियर हुआ है, जबकि मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर ये आप 1 मिनट के लिए तफसीर सगीर से भी बढ़कर तफसीर मसीह मऊद आपके लिए अहम होनी चाहिए ना। असल आपके लिए हकम और अदल तो मिर्ज़ा साहब है ना। आपने तफसीर मसीह मऊद में इस आयत की तफसीर पढ़ी है? जी पढ़ी है। मैं वही कह रही हूँ कि वो इतनी क्लियर नहीं है जितना 1915 के बाद जो 28 या 30 आपस में डिबेट्स हुई हैं ना, उसमें बात क्लियर हुई है। मिर्ज़ा साहब की मैं पढ़ती रही हूँ तहरीर, हम लोग पढ़ते हैं उसको भी, लेकिन वो इतनी नहीं कि अच्छा इसका मतलब ये है, वो जाके उनकी डिबेट्स पढ़ के हुई है क्लियर चीज़। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। यही मैं कह रहा था आपके आने से पहले कि उस बंदे ने मुझे कहा कि मिर्ज़ा साहब ने जो तहरीरात छोड़ी है ना, वो ऐसे है जैसे कोई खाम माल होता है और उसको कोई बंदा बाद में आके नीट एंड क्लीन करता है, उसके अंदर तरतीब और उसके अंदर जहाँ झाड़ फूंक करके उनके आगे पीछे वही ये वाली पहले है, ये वाली बाद में है, असल मौक़िफ़ ये है। तो बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब ने ही तो उनकी तहरीरों को अरेंज किया है। मिर्ज़ा साहब की तहरीरों को बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब ने ही अरेंज कर, और वो उनकी अरेंजमेंट कब हुई है? 1915 और 16 में। तो उसको देखना चाहिए ना कि उन्होंने मिर्ज़ा साहब की तहरीरों से क्या नतीजा निकाला है। अगर उस मौक़िफ़ से बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब ने कभी रुजू किया हो या उसको बदला हो
तो वो पेश करें। अगर ये है कि वो 1915 और 16 के मौक़िफ़ के बिल्कुल बरक्स तफसीर सगीर में चंद लाइनें लिखी हों, तो ये तो और भी अलार्मिंग सिचुएशन है कि कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं, तो फिर तो और भी परेशानी की बात है। इसको ऐसे नहीं सोच सकते कि एक इल्मी गुफ्तगू थी, वो चली बहुत ज़्यादा, उसके बाद जो है वो खलीफा सानी को ने थोड़ा सा हल्का करके उसको तफसीर सगीर में लिख दिया, क्योंकि वो तफसीर सगीर तो बहुत लेट है, शायद 1956 में शायद थी। नहीं देखें, बात ये है, और सीखता है ना, बात ये है सिस्टर, बात ये है कि जो मिर्ज़ा साहब ने दावे किए हैं ना, वो ऐसे नहीं हैं कि उनकी एक सिर्फ तफसीर है, एक समझ बूझ है, एक फ़हम है, आपका दिल करे फॉलो करें, ना दिल करे ना फॉलो करें। ये बात तो ताहिर महमूद अमजद साहब कहते हैं, उर्फ टोनी, वो जो कनाडा वाले हैं, वो कहते हैं कि मिर्ज़ा साहब की तफसीर से, मिर्ज़ा साहब की तहरीर से, मिर्ज़ा साहब की बात से इख्तलाफ किया जा सकता है। यही बात मौलवी मोहम्मद अली लाहौरी कहता था, यानी मिर्ज़ा साहब ने ईसा अलैहिस्सलाम को बिन बाप लिखा तफसीर में, और मौलवी मोहम्मद अली लाहौरी ने कहा कि वो बिन बाप नहीं थे ईसा अलैहिस्सलाम, और कहा कि मिर्ज़ा साहब से इख्तलाफ किया जा सकता है। तो यही बात जो है, यही तो उनका मौक़िफ़ है कि मिर्ज़ा साहब से इख्तलाफ किया, जबकि मिर्ज़ा साहब के दावा जात ये हैं कि जो मुझको हकम और अदल मानता है ना, वो अपने तमाम तनाज़ात का फ़ैसला मुझसे करवाता है। जो मैं कहता हूँ, कुरान का जो मानी बयान मैं करता हूँ, ये तफसीर वो नहीं है जिस तरह मौलवियों ने लिखी है। मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी ने एक तफसीर लिख दी है, एक अहमद रज़ा बरेलवी साहब ने लिख दी, आपका दिल करे वो मान लें, दिल करे वो मान लें। भाई वो आम लोग हैं। इतना सख्त अल्फाज किए हैं कि जो मुझे छोड़ता है वो एक लंगड़े मरियल टट्टू पर सवार होता है। हाँ, वो तो सीधा जहन्नम में जाएगा ना। उनका दावा ये है कि जो मुझे छोड़ता है, जो मुझसे फैसला नहीं करवाता, मेरी तहरीर को नहीं पकड़ता, मेरी बात को इख्तियार नहीं करता, वो उसका कोई नहीं ठिकाना, वो सीधा जहन्नम में जा रहा है। उसका वो काबिल मुआखज़ा है, मतलब उसको उसका सख्त इम्तिहान होगा, वहाँ पर वो जहन्नम में फेंका जाएगा। तो मिर्ज़ा साहब की बात को साफ करके बयान किया बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब। तो ये ऐसा नहीं है कि तफसीर है, इल्मी तहकीक है, मुफ्ती हो जाएंगे, मुसीब हो जाएंगे, तहकीक मान लो ना मान लो, जमात से ना निकालना वो तो उनका एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, वो उनको भी नहीं निकालते जो यहाँ पर क्या क्या कुछ कर लेते हैं, और उनको भी निकाल देते हैं जो हल्की सी हमाह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। वो तो वहाँ पर तो निज़ाम इस तरह है कि जो बंदा जमात के साथ सही है, वो कितना बड़ा भी उसने गुनाह किया हुआ उसको नहीं निकाला जाता। जो चंदा वगैरह नहीं दे रहा या बाकी उसके मामलात ख़राब हैं जमात के साथ, तो वो हल्की सी गलती करेगा, उठा के बाहर फेंक देंगे, वो तो एक अलग मामला, वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है। लेकिन ये ख़ता का और मुसीब होने का मामला नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। जो बंदा इसमें ख़ता करता है वो मिर्ज़ा साहब के एक दावे का इनकार करता है, और मिर्ज़ा साहब के दावे को बयान करने वाले उनके बेटे हैं। अगर वो नहीं होते तो ये मज़हब की शक्ल इख्तियार नहीं कर सकती थी ये तहरीक जी। दूसरे ये तो कुरान का मामला देखा ना, कुरानी आयत है, ये कोई किसी की कोई ख्याल या सोच तो नहीं है, अल्लाह ताला का कलाम है। उसके मुतल्लिक आप बता रहे हैं ये वाली जो पेशगोई कुरान ने बताई है ये फलां शख्स के मुतल्लिक है या फलां शख्स के मुतल्लिक है। हाँ, दोनों बातें तो दुरुस्त नहीं हो सकती। हाँ जी, हाँ जी। मिर्जा ये महमूद ऐसे- साहब यही लिख रहे हैं कि एक ही मिस्ताक है इसका, और वो मिर्जा साहब जी। ठीक है, जज़ाकल्लाह एवरीवन। मेरी क्लास शुरू हो गई है, लेकिन अब जो है ना, फ़िलहाल के लिए हम लोगों ने ये इस टॉपिक को छोड़ के 300 दलाइल वाली बात की है। तो उसके लिए बहुत सारे मुरब्बियान को कॉल करके पूछा है, लेकिन मुझे ये है कि चलें इसके ऊपर करेंगे बात फिर। 300 दलाइल की भी बात बता दें, मिले हैं 300 दलाइल के नहीं मिले? 300 दलाइल हजूर ने नहीं दिए, और हम लोग जो हैं वो पुरानी जो है वो देखकर ब्राइन अहमदिया के पहले एक दो हिस्सा क्या कहते हैं पार्ट्स को देखकर ये साबित करना शुरू हो जाते हैं कि 300 दलाइल। जब साहिब किताब ने कह दिया है कि मुझे अल्लाह ताला ने किसी और तरफ मोड़ दिया था, तो फिर हम कौन होते हैं? अब बिल्कुल नहीं, उन्होंने दिए नहीं है। उन्होंने कहा वो 2 दलाइल काफ़ी हैं 300 के ऊपर। हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि वो 2 दलाइल जो हैं वो 20,000 पर भारी हैं, और वो 2 दलाइल बहुत बुनियादी दलाइल हैं। देखा तारिक भाई, इस्लाम पक्के सबसे बहन भाई हैं। बेहतरीन मज़हब है, और ये कि इस्लाम अल्लाह ताला की तरफ से है,
इसके इर्द गिर्द सारे वो दलाइल हैं। लेकिन चौहान साहब, वो मुरब्बी साहब वहां पर इनको कह रहे थे कि उन्होंने दिए हैं, आपको नजर नहीं आए, मुझे तो नजर आए हैं, मैंने तो पढ़े हैं। हमने ऑफ द रिकॉर्ड 12 मुरब्बियान से पूछ लिया है आमिर भाई, 12। और एक मुरब्बी साहब है, मैं उनका नाम नहीं ले सकती, वो हमारी फैमिली के ही हैं। उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं और वो एक साबित, वो कह रहे थे कि मैं 300 दलाइल अलग करके भी निकाल सकता हूँ। लेकिन मकसद ये है कि अगर वो 300 दलाइल साबित करते हैं तो हमारा अगला सवाल ये होता है कि ठीक है, फिर उसको तोड़ने के लिए हमें दलील बसीत, दलील मुरक्कब, अंदरूनी और बैरूनी, वो पूरा सेट चाहिए। तभी उसके ऊपर 10,000 उस ज़माने के, आजकल के 20 करोड़ इनाम जो है, वो चीज़ आप लोग ज़बरदस्ती उसको अंदर निकाल रहे हो। ये ज्यादती है, ये ज्यादती है, जुल्म है। ये देख लें क्या बंदा, फिर अब हमें इसका क्या डांट पड़ रही होती है उल्टा। अब इसलिए हम लोग लाइव पे इसको पढ़ेंगे, और क्योंकि वो कहते हैं कि चैलेंजेस आ रहे हैं, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट सबसे यही है कि प्लीज़ खुद पढ़ें। पहली जिल्द में से दलाइल निकालना शुरू कर देते हैं। दूसरी जिल्द का पहला टॉपिक ही हजूर ने लिखा है कि जाहिल मुखालिफिन जल्दी कर रहे हैं। इस तरह की बात है कि अभी मैंने दलाइल देना शुरू नहीं किए तो तुम लोग अखबारों में जो है वो इश्तिहार शाया कर रहे हो। सो वेट एंड वॉच। और उसके बाद बदनाम करने की के एंड पे यानी कि अब मैं जवाब दूंगा। बल्कि यहाँ पे टिकटॉक पे भी हमारे वो बहुत मोहतरम भाई हैं, ख़त्म नबूवत यूनिवर्सिटी भाई, वो बार बार चैलेंज करते हैं। तो हमारा काम नहीं है कि हम जाकर प्रूफ करें, हम तो एक रिसर्चर्स ही हैं। वो लेकिन 2 बहरहाल दफ़ा ये- शायद पोस्ट लगा चुके हैं कि आप आए हमारे पास, हम आपको वो दलाइल देते हैं 300। एक आप दे उनके पास दें, एक दे दें और आके वहाँ पर दे दें। हम एक पे बहुत खुश हो जाएंगे। मतलब वो दलील, अगर आप उनकी बरात पे एक दिन चले जाएं हिम्मत करके, तो उनसे वो इतने मोहतरम भाई हैं, हम उनकी ब्रॉड पे चले भी जाएं, कुछ आए ना। जितनी देर में उन्होंने वो पोस्ट लगाई है इतनी देर में वो लगा दें। आवाज़ कट रही थी। हैं, आमिर भाई आपकी आवाज़ कट रही है। आमिर भाई जो ना- आपके सिग्नल हाँ, कमजोर हो गए। आप ठीक हो जाए। आप ठीक हो गए। बोल, आप करें बात। जो दोबारा करें, मैं सुन नहीं सका क्या बोला सिस्टर ने। मैंने कहा कि हम उनकी ब्रॉड पे अव्वल तो जाएं क्यों, और जाएंगे तो सवाल करने के लिए जाएंगे। लेकिन ये जो 300 दलाइल वाली बात है, हमने फॉलो करना है साहिब किताब को। जब वो खुद कह रहे हैं क्लियरली, और अगर वो कह रहे हैं कि आप जितने ढूंढते हैं हम ढूंढ देंगे, तो हम तो एक में खुश हो जाएंगे। एक दलील दे दें जो उस क्राइटेरिया पे पूरी उतरती हो कि जिसको तोड़ने की कोई कोशिश करे। और उसका तरीका ये है कि दलील नंबर वार लिखी जाए और उसके अंदर जो है वो अंदरूनी बैरूनी शहादतें हों, और दलील बसीत भी हो और दलील मुरक्कब भी हो। एक पे हम खुश हैं, लेकिन वो फिर चीज़ कहीं से कहीं निकल जाएगी। देखिए, एक इसके लिए एक बात में थोड़ा सा मेरा आपसे इख्तलाफ है कि मैंने पहले दिन से आपको ये कहा था आपकी ब्रॉड पे जाके कि अगर आप डायरेक्ट साहिब किताब से इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहते हैं तो आप गलती पर हैं। मिर्ज़ा साहब की तहरीरों से डायरेक्ट इस्तिफ़ादा करने वाला बंदा वो ठोकर खाता है, वो कभी भी मंजिल नहीं पाता। उनको समझने के लिए किसी ना किसी का जो है ना हेल्प लेनी पड़ती है, भले वो मुरब्बियान हों, भले वो उनके बेटे की तहरीरें हों, किसी ना किसी को एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं, वरना उनकी तहरीरों में जो मसाइल है ना, वो आम बंदा उन कॉम्प्लिकेशंस को दूर कर नहीं सकता। सिस्टर, बात ये है, आप सिंपल उनकी बात ले रहे हैं, लिटरली इसको ले रहे हैं कि भाई उन्होंने लिखा है 300, तो वहाँ कहीं ना कहीं नंबर वार, जिस तरह हकीकतुल वही में नंबर 1 2 3 निशानात लिखे हों, ये मेरा पहला निशान है, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसा तो उन्होंने कहीं नहीं लिखा हुआ ना 300 दलाइल। अगर आपने इनको बनाना है घर, उन्होंने लिखा है कि अगर कोई इसको तोड़ना चाहता है तो उसका तरीका ये है कि वो पहले उसके ऊपर नंबरिंग दे, फिर पूरी मेरी दलील लिखे और फिर उसके जवाब में वो लिखे। वो कौन सी दलीलें हैं जिसको तोड़वाना चाहते हैं?
वो 300 जो देना का उनका प्लान था, तो हाँ उन्होंने कहा था कि जो मैं दूंगा उसको नंबर वार जवाब देने वाला उसको नंबर वार लिखे, फिर पूरी मेरी दलील हाँ लिखे, हाँ और फिर उसके बाद जो है वो मुरक्कब भी हो, बसीत भी हो, अंदरूनी और बैरूनी शहादतों के साथ फिर जाकर एक दलील कंप्लीट होती है। सिर्फ एक स्टेटमेंट इज़ नॉट इनफ कि अगर हम कह दें कि हुज़ूर ने कहा ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही, ये एक दलील है। ये दलील नहीं है, आपको इसको जो है वो चारों रुख से परख कर फिर देनी होगी दलील। तो इस तरह तो वहां पर मिर्जा साहब ने कोई लिखी ही नहीं हुई ना। वो दलाइल तो अभी उन्होंने देने थे, मसले और बन हाँ गए, जी। वो दलाइल वो नहीं दे सके। सच्ची बात तो यही है ना कि उन्होंने, यही उनके बेटे ने कहा कि भाई दलील दी थी एक, वो भी आधी दलील नहीं दी है, 300 दलाइल नहीं दी है। सच्ची बात तो यही है। जब लेकिन आपको जो है पहला मिलता है, सॉरी माजरत, मैं एक बात बस बता दूं कि जब आपको जो है वो शुरू में वो बता देते हैं कि ये किताब का स्ट्रक्चर ऐसा होगा कि मैं एक इश्तिहार दूंगा, उसके बाद जो है मैं वो तमहीद होता है वो दूंगा, उसके बाद 4 फसल और एक ख़ात्मा होगा। हम ये सारी हेडिंग्स फॉलो करते हुए तीसरी जिल्द के अंदर जाकर हमें मिल जाती है पहली फसल, चौथी जिल्द के अंदर हमें मिल जाती है पहला बाब, उसके बिल्कुल नीचे मिल जाती है हेडिंग पहली बुरहान अव्वल। तो फिर हम बुरहान अव्वल की हेडिंग के नीचे ही तो उस बुरहान को ढूंढेंगे। ये तो नहीं हो सकता कि हम पहली 3 जिल्दों के अंदर वो बुरहान ढूंढना शुरू कर दें, जबकि साहिब किताब ने बता दिया है कि ये मेन हेडिंग्स हैं, बुरहान अव्वल के नीचे आएगी बुरहान। साहब ज़ाहिर बुरहान वही वहीं से शुरू हो रही है। बुरहान दलील को ही कहते हैं, वहां से वो दलील है पहली, जिसको आधा पेश किया, आधी दलील लिखी, तो बात खत्म। तो उसके अंदर वो अगर कोई कहे कि पहली 2 जिल्दों में से मैं निकाल कर देता हूँ तो हम नहीं मानेंगे, इसलिए कि उस साहिब किताब ने ही नहीं, वो तो उन्होंने बात बताई, अपने इल्हाम बताए हैं। ये दावा किसका है कि पहली 2 जिल्दों में से निकाल के दूंगा? खत्म नबूवत यूनिवर्सिटी के सब काफ़ी लोगों का है। मुनाफिका तेरी तो क्लास थी, रियल मुस्लिम, मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरी बाकी क्लास है, आपको पीछे से आवाज़ें भी आ रही होंगी। क्या हुआ है भाई? वो कह रहे हैं अच्छा, मुनाफिका कौन? तेरी तो क्लास थी। कोई हाँ बात नहीं, अल्लाह तो ये नहीं इनको समझ आती हिदायत कि ये लोग जो है पढ़ लो भाई, पढ़ लो ताकि तुम लोगों को खुद ख्याल आए। अच्छा मैं वाकई चलती हूँ क्योंकि ये लोग क्लास में बातें करना शुरू हो गई हैं और ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। अल्लाह कंटिन्यू आपको रहेगा खैर दे। इंशाल्लाह इस पे। बहुत अच्छा बाजी, जी आखिरी जी जी। बात, बाजी लास्ट बात ये सुन लें जाने से पहले जी बच्चे, कि बाजी वो आप सबको टाइम देती हैं अपनी ब्रॉड के ऊपर, बाद में आहिस्ता आहिस्ता तारिक चौहान साहब को भी थोड़ा सा ना टाइम दिया करें, ये भी काफी मिर्जा साहब की किताबों का इल्म रखते हैं। हम 1 to 1 ही रख लेंगे, पता है क्या, जब एक दफ़ा पढ़ लेंगे ना तो तारिक भाई को साथ किसी और को नहीं उठाएंगे, आमिर भाई के साथ किसी और को नहीं उठाएंगे। हाँ ये ठीक है, ये फ़ायदा बिल्कुल उठाना है, दुरुस्त है, ऐसे नहीं तो करना वो फिर मतलब हमारी ब्रॉड में अगर कोई गुस्सा करके चला भी जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, बाद में तस्बीह बैठ कर अल्लाह मियां उसको माफ़ कर दे, यही हो सकता है। तो इसलिए अच्छा है कि इन चीज़ों में ना ही जाया जाए। नहीं ठीक है, ऐसे ही करें जैसे आपने कहा है ना, 1 to 1। लेकिन पहले ठीक है पढ़ लें, जी जी। पहले ये जो है ना 4 एक दफ़ा फिर से पढ़नी है, क्योंकि उसमें हजूर ने जो अपने इल्हाम लिखे हैं ना वो 5वीं जिल्द के शुरू में जो है वो फ़ायदा उनका नज़र आया है, तो पढ़ने चाहिए। जी जी, बल्कि वो जो इब्राहिम अहमदिया में इल्हामात है ना, वही सारी बुनियाद है जिसका बाद में भी वो अपनी सब किताबों में जिक्र करते रहे। हाँ जी, और तारिक भाई हम वो पढ़ के गुजर गए, जी जी पर बाद में जाके एहसास हुआ कि अच्छा जो उन्होंने रीज़न लिखी है कि वो 23 साल बीच में गैप आ गया, जी जी बल्कि अच्छा नहीं तारिक भाई, आपसे 1 to 1 अलग से कर लेनी चाहिए ताकि आपका पॉइंट ऑफ व्यू लें कि आपने कैसे पढ़ी किताब और उससे क्या चीज़ क्या इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इंशाल्लाह डन हो गया। ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन, जज़ाकल्लाह आमिर भाई, एवरीवन लीड, अल्लाह हाफिज बाजी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़, सलाम। असल बात है कि ये भी एक मसला है। आप देखें ना कितना इम्पोर्टेंट मसला इनसे बात करने से सामने आया कि ये
आप सिर्फ दीनी जो इल्म है ना, ये उससे बात मखसूस नहीं है, हर इल्म से ये बात मखसूस है। अब जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन जिसको हम कहते हैं रेवोल्यूशन ऑफ नॉलेज, वहाँ पे भी यही मसला है कि आपने एक थ्योरी बनाई हुई है, लेकिन आप देख रहे हैं कि इस थ्योरी में जो हमने एक बात इस्टेब्लिश कर दी है, कुछ ऐसी बातें नज़र आ रही हैं जो उसके मुताबिक फिट नहीं आ रही, तो आप बार बार फिर सोचते हैं कि नहीं, ये हमारे शायद सोचने में देखने में कोई गलती होगी, वरना थ्योरी तो बिल्कुल सही है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ऐसी चीज़ों की तादाद, ऐसे वाक़यात की तादाद जो थ्योरी पे फिट नहीं आते, उनकी तादाद बढ़ती जाती है। तो बाद उसको कहा जाता है कि फिर आपने ना पैराडाइम आपका चेंज हो गया, कि वो ऐनक जो आपने लगाई हुई थी ना, जिससे आप सारी रियलिटी देख रहे थे, उसके नंबर में फ़र्क था। तो एक वक्त आता है कि जब इतनी ज़्यादा एविडेंस आपके पास आ जाती है, ये जो हमने लॉ बनाया वो था अपनी तरफ से, इसमें ये ख़राबी थी, तो फिर उसको कहते हैं कि वो एक रेवोल्यूशन है, कि आपने वो चेंज फिर करना है। वो बहुत बड़ी बात होती है कि एक लॉ स्टैब्लिश आ रहा है इतने कई सौ सालों से, अब आपने देख लिया कि भाई नहीं, हर चीज़ पे फिट नहीं आ रहा, तो फिर आपने जब चेंज करना है तो उसको रेवोल्यूशन कहते हैं। तो ये जो आदमी, ये सोच इनकी है कि किसी तरीके से कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए कि मिर्ज़ा महमूद साहब भी सच्चे हों और उनकी बात जो है उसको तस्लीम भी ना किया जाए। ये एक मुश्किल पड़ जाती है। हालांकि मिर्ज़ा महमूद साहब का इनकार करना तो बड़ा आसान है, सारा ही मुश्किल हल हो जाए, लेकिन मुश्किल सारी ज़िंदगी यही रहती है कि उस चीज़ की तरफ नहीं जाना कि नहीं है तो वो सच्चा, लेकिन यहाँ पे चूँकि झूठ बोल रहा है, इस वजह से कुछ मजबूरी ऐसी बनानी है हमने कि हम कहें चलो जी वो तो खैर ठीक है, इल्मी तहकीक होगी, वो उन्होंने ये सोचा होगा, ऐसी बात कर दी होगी, उससे कोई ईमान पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि ईमान पे तो फ़र्क पड़ता है, लेकिन तो फिर देखें ना, बाद में उन्होंने वो जो तफसीर सगीर में चंद लाइनें लिख दी, इसका मतलब है कि फिर उनका ये वो सोच पहले थी, अब ये हो गई है। तो ये सारी बातें आप मुख्तलिफ हकायक को एक गलत थ्योरी के ऊपर फिट करने की कोशिश कर रहे हैं जी। थॉमस कून ने बड़ी अच्छी, इसके मतलब बड़ी मशहूर किताब है, जब भी हम अपने स्टूडेंट को साइंटिफिक नॉलेज की पढ़ाते हैं ना, तो वो पढ़ाई जाती है, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से ये रेवोल्यूशन आता है नॉलेज में। तो किसी ने पढ़नी हो तो ज़रूर पढ़ें, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है इस लिहाज से। छोटी सी किताब है, कोई बड़ी नहीं। मूसा भाई आए हैं। मूसा भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वलीद भाई कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। मूसा भाई आप आए थे वे, तो उस टाइम आपने को बात नहीं कर सके, आप नहीं बात नहीं करनी नहीं, मैं तो वलीद भाई कोई बात करता ही नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ सलाम दुआ करने के लिए आता हूँ, तो खैर अफीर पूछने के लिए आता हूँ दोस्तों की और सर जी की। सर जी लगता मसरूफ़ हो गए हैं कहीं, तो इसके अलावा तो कुछ नहीं। बड़ी अच्छी बात की तारिक चौहान साहब ने कि दीन के मामले में या तो होता है या नहीं होता, तो तीसरा रास्ता तो फिर वो ख़त्म ही हो जाता है ना, तीसरा रास्ता तो होता ही नहीं है। तो इसी लिहाज से मुझे भी एक बात याद आ गई, मैंने कहा चलो मैं भी पूछ लेता हूँ। वलीद भाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम उठाकर कहा कि तुम्हारे दरमियान ईसा इब्न मरियम नाज़िल होंगे, तो वहाँ पर क्या कि दीन का मामला नहीं है कोई? इस पर थोड़ा सा मुझे बता दे ज़रा। बड़ा आसान है, जब हज़रत ईसा इब्न मरियम रसूलन इला बनी इसराइल वफ़ात पा चुके, तो कसम खा के कहा है कि तुम में ईसा इब्न मरियम नाज़िल होगा, तो जाहिर है कि वो मुर्दा उठ के तो नहीं आएगा। उसका मतलब यही है कि किसी शख्स को उम्मत में ये नाम दिया जाएगा। तो नाम देना तो कोई ऐसी बात नहीं, हमारे अपने माहौल में कितने लोग नबियों के नाम पे नाम रखते हैं, तो किसी को अगर ये नाम दे दिया जाए तो उससे कोई बात फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि वो पेशगोई पूरी हो जाती है। नहीं तो तारिक चौहान साहब, ये तीसरा रास्ता फिर निकाल नहीं लिया आपने? नहीं, ये तीसरा रास्ता नहीं है। तीसरा रास्ता हम तब निकालें अगर हम कहें मसीह इब्न मरियम ने नहीं आना था,
भाई वो तो उन्होंने फरमाया है, वो हम मान भी रहे हैं कि हाँ बिल्कुल है, लेकिन चूंकि कुरान तो कह रहा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो वफात पा गए जैसे और सारे वफात पा गए, तो जाहिर है कि जब किसी को कहा गया है